اگر آپ اپنی تقدیر کا رخ بدلنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہو سکتی ہے۔ دوستو، جب ہم تقدیر کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بلو پرنٹ کو سمجھنا ہوگا جو اس رات آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ترجمہ: اس رات فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام اور فیصلے کے لیے اترتے ہیں۔ یہاں من کل امر، ہر کام کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات کوئی بھی چیز رینڈم یا اتفاقاً نہیں ہوتی۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی ایک پوری فوج نیچے آتی ہے جو ایک مخصوص فائل لے کر آتی ہے۔ اسے آپ کائنات کا ماسٹر پلان کہہ سکتے ہیں جو اس رات نافذ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی جدید زبان میں سمجھیں تو شب قدر دراصل کائنات کا اینیول ریویو ہے۔ جیسے بڑی کمپنیاں سال کے آخر میں آنے والے 365 دن کا بجٹ طے کرتی ہیں اور پلاننگ کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کو اگلے سال کتنا ملنا ہے، آپ کے ساتھ کیا واقعات ہونے ہیں، کس نے مر جانا ہے اور کس نے رہنا ہے، یہ سب فیصلے فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا لاجک لگائیے، اگر کسی آفس میں آپ کی پروموشن کا فیصلہ ہو رہا ہو اور ٹھیک اس وقت آپ وہاں موجود ہوں اور کوئی ایسا ریفرنس اور سفارش پیش کریں جو رد نہ ہو سکے، تو کیا فیصلہ آپ کے حق میں نہیں بدل جائے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی فریکوینسی یعنی دعا پر فوکس کرتے ہیں تو وہ کلیکٹیو کانشسنس پورے ماحول کی انرجی بدل دیتی ہے۔ جب آپ شب قدر کی اس پرنور رات میں درود شریف کی فریکوینسی شامل کرتے ہیں تو آپ اپنے سالانہ جائزے کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیتے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے جب قلم چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کی زبان پر درود ہوتا ہے تو سمجھیں آپ اس قلم کو اپنے حق میں چلوا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا وہ سسٹم جو آسمانوں پر چل رہا ہے، مگر ہم گناہگاروں کے لیے اس رات میں ایک بہت بڑا بونس بھی چھپا ہے جو ہمارے گناہگار ماضی کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ جب کائنات کا مالک کوئی نیا پلان تیار کرتا ہے تو وہ پرانی رکاوٹوں کو ہٹانے کا ایک سنہری موقع بھی دیتا ہے۔ اسے ہم روحانی زبان میں مغفرت کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے جو اس رات کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں مگر ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر ہمارے پچھلے گناہ اور غلطیاں ہماری تقدیر کے راستے میں ایک بلاکیج اور رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں درود شریف ایک کیٹلسٹ یعنی رفتار بڑھانے والا ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تب تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق اور لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ جب آپ اس رات مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ساتھ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ نتیجہ، آپ کی مغفرت کا فیصلہ فوراً ہوتا ہے اور آپ کی تقدیر کی فائل پر ایکسیپٹڈ کی مہر لگ جاتی ہے۔ شب قدر ایک عام معافی کا اعلان ہے اور درود شریف اس اعلان پر آپ کا دستخط ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے فضل سے نہیں روک سکتی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا لکھا ہوا مٹا کر دوبارہ لکھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ہماری تقدیر کوئی ایک سٹیٹک یعنی جمی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اسلامی علم کے مطابق تقدیر کے دو لیولز ہوتے ہیں۔ ایک، تقدیر مبرم، the fixed knowledge، یہ وہ علم ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے اور کبھی نہیں بدلتا۔ دو، تقدیر معلق، the variable planning، یہ وہ حصہ ہے جو ہر سال شب قدر میں فرشتوں کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھیں کہ ملک کا سینٹرل بینک، اللہ کا علم تو وہی رہتا ہے، مگر ہر سال ایک ایئرلی بجٹ شب قدر پاس ہوتا ہے۔ اس بجٹ میں طے ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا رزق ملنا ہے، کون سی مشکل آپ کے راستے سے ہٹنی ہے،
कौन सा नया मौका और अपॉर्चुनिटी आपको मिलना है। अब क्या हमारा अमल इस फैसले को बदल सकता है? तो देखें, साइंस में एक तस्वुर है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, यानी किसी चीज को देखने या उस पर तवज्जो देने से उसका नतीजा बदल जाता है। जब शब कदर में फरिश्ते आपका सालाना बजट, मसलन रिस्क, सेहत, कामयाबी लिख रहे होते हैं और ठीक उस वक्त आप दरूद पाक की हाई फ्रीक्वेंसी के साथ दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह की रहमत इस बजट में तब्दीली का हुक्म दे देती है। हदीस में आता है, दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर को रद्द नहीं कर सकती। अगर आपके नए साल के प्लान में कोई परेशानी लिखी भी है, तो इस रात आपका दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की रहमत को मुतहर्रिक और ट्रिगर करता है। अल्लाह उस परेशानी को या तो ख़त्म कर देता है या उसे आपके लिए नेकी में बदल देता है। शब कदर में कलम चल रहा होता है और आपका दुरूद इस कलम की स्याही को रहमत में बदल देता है। दोस्तों, ये तो था सिस्टम, मगर सवाल ये है कि दुरूद शरीफ ही क्यों? दुआ तो हम आम जबान में भी मांग सकते हैं। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं द पावर ऑफ दुरूद, दुआ का गेटवे, और वो राज कि कैसे दुरूद आपकी दुआ को बुलेट स्पीड देता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिखी है, आपके साल भर के सारे ख्वाब उसमें हैं, मगर आपके पास उसे पोस्ट करने का जरिया नहीं है। क्या वो मुताल्लिका शख्स तक पहुंचेगी? नहीं ना। शब कदर में हमारी दुआओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर उनके साथ दुरूद शरीफ का पासपोर्ट ना हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मौल्लक रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजो। इसे एक सैटेलाइट लिंक की तरह समझें। जब तक आपका रिसीवर सही फ्रीक्वेंसी पर सेट ना हो, सिग्नल ऊपर नहीं जाता। दुरूद शरीफ वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो आपकी दुआ को जमीन की ग्रेविटी से निकालकर सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है, वो हमारी हर दुआ कबूल करे या ना करे, ये उसकी हिकमत है। मगर जब कोई अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कहता है, तो ये एक ऐसी दुआ है जो 100% गारंटी के साथ कबूल होती है। उलमा फरमाते हैं कि जब आप अपनी दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं कि वो इस पैकेज का शुरू और आखिर यानी दुरूद तो कबूल कर ले, मगर दरमियान वाली चीज़ आपकी हाजत को छोड़ दे। जब आप दुरूद के साथ दुआ को रैप करते हैं, तो अल्लाह की रहमत पूरे पैकेज को कबूलियत की कैटेगरी में डाल देती है। शब कदर में वक्त बहुत कीमती होता है, फरिश्ते फैसले लेकर नीचे आ रहे होते हैं। ऐसे में दुरूद शरीफ एक एक्सेलरेटर का काम करता है। ये आपकी दुआ के खुलूस को बढ़ा देता है, ये आपके दिल से शक और डाउट को निकाल देता है, ये अल्लाह की तवज्जो को आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि आप इसके सबसे महबूब बंदे का नाम ले रहे हैं। दुरूद शरीफ वो सिफारिश है जो रद्द नहीं होती। जब आप शब कदर में अपनी तकदीर के लिए दुआ मांगते हैं, तो दुरूद इस दुआ पर अर्जेंट की मोहर लगा देता है। दोस्तों, ये तो थी रूहानी ताकत की बात, मगर क्या साइंस भी इस तकरार और तवज्जो को मानती है? क्या वाकई दुरूद पढ़ने से हमारे दिमाग में कोई तब्दीली आती है जो फैसलों को असरअंदाज करती है? चलिए देखते हैं साइंस और नफ्सियाती जाविया, और समझते हैं थीटा स्टेट का हैरान कुन राज। अक्सर लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ एक रूहानी अमल है, मगर जदीद साइंस और नफ्सियात बताती है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो आपके जिस्म और दिमाग में ऐसे हयातियाती बदलाव आते हैं जो आपकी दुआ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और गैर मामूली बना देते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त हज़ारों ख्यालात की रश में होता है, मगर शब कद्र में जब आप दुरूद शरीफ का जिक्र करते हैं, तो आप दरअसल अपने दिमाग को एक लेज़र बीम की तरह फोकस कर रहे होते हैं। साइंस कहती है कि जब हम किसी एक बात या लफ्ज़ जैसे दुरूद शरीफ को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग बीटा लहरों, जो तनाव और टेंशन की लहरें हैं, से निकलकर अल्फा और थीटा लहरों में चला जाता है। फ़ायदा: थीटा स्टेट वो वक्त होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुल जाता है। शब कद्र की तन्हाई में जब आप इस कैफियत में दुआ मांगते हैं, तो आपकी नीयत में इतनी ताकत होती है कि वो मैनिफेस्टेशन यानी चीज़ों को हकीकत बनाने का सबब बनती है। साइंस की ज़बान में खुलूस का मतलब ही यही है कि आपका दिल और दिमाग एक ही बात कह रहे हों। जब आप इस कोहेरेंट स्टेट में होते हैं, तो आपकी पुकार में एक स्पिरिचुअल वेट यानी रूहानी वज़न पैदा होता है। यही वजह है कि इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूलियत का दर्जा पाती है।
क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि हमारी तवज्जो और अटेंशन ज़र्रात का रुख बदल सकती है। जब आप शब क़द्र में पूरे फोकस के साथ अपनी तकदीर के लिए दुआ करते हैं और उसे दुरूद के साथ चार्ज करते हैं, तो आप दरअसल आने वाले साल के इम्कानात को अपने हक में मोड़ रहे होते हैं। साइंस कहती है फोकस ताकत है और इस्लाम कहता है इखलास ताकत है। दुरूद शरीफ इन दोनों को मिलाकर आपकी तकदीर के फैसलों को रीराइट करने की पावर देता है। मगर अब सवाल ये है कि वो ख़ास दुरूद कौन सा है और उसे पढ़ने का सही अमली तरीका क्या है। चलिए अब देखते हैं द स्पेशल दुरूद फॉर शब क़द्र और उसे पढ़ने का वो फ्रेमवर्क जो आपकी हर दुआ को अर्श तक ले जाएगा। दोस्तों, दुनिया में हज़ारों दुरूद हैं, मगर जो दुरूद इब्राहिमी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये वो दुरूद है जो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल का जिक्र है, जो कायनात की सबसे बड़ी रूहानी नस्ल है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मुस्तनद फ्रीक्वेंसी पर अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। अमल का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें। जैसे ही आप दुरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते आपकी तरफ तवज्जो देते हैं। दुरूद के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इस्तिग़फ़ार आपके सिग्नल को साफ करता है ताकि दुआ में कोई शोर रुकावट न रहे। अब अपने दिल का हाल बयान करें। जो तकदीर आप चाहते हैं, रिज़्क़, शिफा या कामयाबी, वो अल्लाह से मांगे। उस वक्त ऐसे मांगे जैसे फैसला अभी हो रहा हो। अब आपकी दुआ के शुरू में भी दुरूद है और आखिर में भी। अल्लाह की रहमत कभी ऐसा नहीं करती कि वो दरख्वास्त के ऊपर और नीचे का हिस्सा यानी दुरूद तो कबूल कर ले और दरमियान वाली चीज़ यानी आपकी दुआ को छोड़ दे। ये दुआ को एक हाई सिक्योरिटी पैकेज बना देता है जो सीधा अर्श तक जाता है। शब क़द्र में ये सैंडविच टेक्निक आपकी खामोश पुकार को भी एक पावरफुल कमांड बना देती है। ये वो प्रोटोकॉल है जो अर्श के फैसलों को ज़मीन पर आपके हक में मोड़ देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि तकदीर बदलने का मतलब कोई जादू है कि सुबह उठेंगे और सब बदल जाएगा। हकीकत क्या है? अल्लाह ताला जब आपका फैसला बदलता है तो वो आपके लिए बेहतर रास्ते खोल देता है। वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा देता है जो आपकी तरक्की का जरिया बनते हैं। वो आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ डालता है जो आपके कारोबार को अमीर से अमीर तरीन बना देते हैं। वो आपको उन बीमारियों और हादसात से बचा लेता है जो आपकी कमाई को खर्च कर देने वाले थे। अल्लाह आपकी मेहनत को बरकत से ज़र्ब दे देता है। यही असली तकदीर का बदलना है, जब आपकी थोड़ी सी कोशिश का नतीजा बहुत बड़ा निकलने लगे। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और मौक़े बार बार नहीं मिलते। हो सकता है कि इस साल की शब क़द्र ही वो लम्हा हो जो आपकी पूरी नस्ल की गरीबी और परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। सोचिए, अगर आज रात अर्श से फरिश्ते आपका नाम लेकर नया फैसला लिख रहे हों, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपको सोता हुआ पाएं या फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और अल्लाह के आगे रोते हुए? अब से हर ताक रात को कम से कम 15 मिनट निकालकर इस अनब्रेकेबल सील प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। याद रखिए, आपका एक दुरूद आपकी पूरी तकदीर का रुख मोड़ सकता है। इस रूहानी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ अभी करें। कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि किसी और की तकदीर बदलने का जरिया आप बन सकें। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली लॉजिकल और रूहानी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।